morning, everyone, and chilly morning also. My name is Amit Charasia, and I represent my company Data Leads. I have been doing only data storage since last almost 20 years now. So storage is the only thing that I know. I don't know AI. I don't know applications. Right? How many of you know about storage? You have heard about it or some insight, some idea? What is that you know? So storage like databases, फिर cloud storages, buckets, मतलब हर चीज हर जगह you can apply whatever like if database तो किस structured data store करोगे, cloud buckets तो unstructured होंगे. चैट जीपीटी में तो टाइम स्पेंड कर रहे हो. राइट. सो थोड़ा सा अगर मैं सादी भाषा में बोलूँ तो स्टोरेज इज लाइक आप मूवीज देखते हैं सब लोग, एवरीबॉडी एंजॉयज, हीरो है, हीरोइन है, हीरोइन को ज्यादा देखते हैं, राइट. लेकिन उसके पीछे का जो प्रोडक्शन टीम है दे हार्डली एक्सेप्ट लास्ट में थोड़ा सा क्रेडिट्स आता है, बट दे आर द गाइज हु एक्चुअली बिल्ड डू द बल्क वर्क एंड स्टोरेज इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक दैट. सो storage is the ultimate technology which basically sits behind your application. So I'll run through the agenda. We will look at how the storage needs have evolved over a period of time. I'm talking about when I'm talking about evolution, of course I'll be talking about the time of epoch. Probably not the big genesis of the humanity, but probably since the time the computing world came up, and how things have evolved over a period of time. Basic building blocks of data storage technologies. Perhaps you might know a new way of looking at the whole computing stack, specifically I/O. Exploring modern storage, so from legacy storage to now the new age storage of what we are talking about. The criticality of data storage system, why it's so important. Most of you are working on the applications, various myriads of applications, artificial intelligence or probably some content development. However, the underlying criticality of storage are aware. Probably you will design applications which are highly performant. And finally, I'll talk about a little about myself, if the time permits. Next slide. Yeah, I can share this. So let's talk about the source. So do you know how much data that the world has been generating every year? Right? Eric Schmidt, the former CEO of Google, he said in 2003 the amount of data that was generated by the human race, complete humanity, till 2003 the whole data was around 5 exabytes. And in 2013, the same amount of data was generated in just 2 days. That is the magnitude of data generation in the growth that we are talking about. How many of you have mobile phones जिसका स्पेस भर गया? कहीं ना कहीं से डेटा स्टोर तो आपको चाहिए, स्पेस चाहिए, राइट? डेटा जनरेट हो रहा है, स्पेस चाहिए, तो कहाँ रखोगे? You need lot of storage space. From in 2010, 2 zettabytes, in 2028, 400 zettabytes. That's a phenomenal 200 times of data growth. That is a magnitude we are talking about. So, in the early stages, from an industrial point of view, the enterprise point of view, what kind of storage was available? It was simple. If you look at it from an application point of view, the application was 3-tier application. एक फ्रंट एंड होगा, बीच में मिडिल लेयर होगा और एक डेटाबेस होगा, और ये सारे लेयर्स का डेटा जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, जो आपका फाइल सिस्टम से आ रहा हो या ब्लॉक स्टोरेज होगा या फाइल स्टोरेज होगा. उसमें आपका एप्लीकेशन और डेटाबेस दोनों शांति से आराम से बैठते हैं. इसके अलावा आपका एक बार डेटा मैनेज हो गया, उसके बाद आपको बैकअप की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर आप बैकअप करेंगे, और अगर आपका अच्छा पैसे ज्यादा है तो आप डिजास्टर रिकवरी भी कर लेंगे, जहाँ पे आप एक दूसरे साइड पे 200 किलोमीटर दूर और एक सिमिलर सेटअप रेडी रखेंगे और दोनों एक्टिव होगा. So this was how a simple world of data storage was. In the current times, the 3-tier application has been replaced by the microservices architecture, the modern application which has scores of services and each service has a different data requirement. तो एक आपका सर्विस रन हो रहा होगा जो आपका फोटोज या ऑडियोज उसको स्टोर करेगा, तो उसको चाहिए कि ऑब्जेक्ट स्टोर चाहिए. एक सर्विस रन हो रहा होगा जो आपके कस्टमर्स का डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, वो आपका NoSQL में जाएगा. एक ऐसा सर्विस होगा जो आपका ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, जो RDBMS में जाएगा.
तो आप देख रहे हैं कि एक ही एप्लीकेशन है, डिफरेंट सर्विसेज हैं, बट उनका स्टोरेज नीड्स अलग अलग है. द अंडरलाइन स्टोरेज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. ऑल्सो डेटा प्रोटेक्शन में भी पहले हम लोग सिर्फ बैकअप, मेरा ये रहता था कि अगर मेरा सर्वर डाउन हुआ so at least I should be able to retrieve my server or end that information probably in a couple of hours. Today we are talking about real-time applications, and not just that, but we also want to have our data at a particular specific geographical location. We are also talking about ransomware protection and so on. So that if you look at it, the dynamics and the spectrum of data storage has increased with time. So this is a basic diagram of a storage stack. आप लोग ने सब लोग इस लेयर पे ज़्यादातर काम करना है, एप्लीकेशन लेयर पे. Any of you are aware of the layer below application? Any of you have little idea what goes behind? Yes. There are kernel systems that will basically do some compression techniques to store. Got it. So from an operating system point of view, अगर अपन देखेंगे तो application जो है हमेशा अपना user space पे काम करता है. However, जब आप कोई application data write कर रहा है, data store कर रहा है, तो it goes to your kernel, the operating system kernel, and that's where the real action starts. कि डेटा को कहाँ प्लेस करना है, कौन से डिवाइस में जाना है, उसका किस तरह से स्टोरेज होगा, उसको रिट्रीव कैसे करना है, वो सारा एक्शन आपका यहाँ पर होता है. तो इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है. सबसे पहले ऊपर फाइल सिस्टम होता है, विच इज बेसिकली सिंपल टर्म से बोलेंगे इट्स अ डेटाबेस ऑफ योर ऑल योर फाइल्स, राइट. उसके बाद नीचे डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको वॉल्यूम मैनेजर बोलते हैं, तो विच मैनेजेस कि कौन से डिस्क में कौन सा डेटा जाने वाला है, राइट. एंड फाइनली यू हैव डिवाइस ड्राइवर्स व्हिच टॉक्स टू द हार्ड डिस्क. आप लोग ने हार्ड डिस्क तो देखा ही होगा, राइट. उसमें आप डेटा स्टोर करते हो, लेकिन डायरेक्टली सीधा एप्लीकेशन आपका हार्ड डिस्क पे कभी लिखता नहीं है, बीच में मल्टीपल लेयर्स होते हैं. ये सारे लेयर्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. दिस इज अ फाइल सिस्टम, then this is the volume manager, and then the device drivers, and finally वो आपके डिस्क के डिवाइस पे जाता है, SSDs या HDDs पे. So this is the complexity. So आप most of us work on this layer, however the whole action happens here, right? And this is the आज जो NAS या SAN आप लोग ने सुना होगा. How many of you have heard of NAS SAN? Right? तो आप लोग जो भी एप्लीकेशंस लिखते हो या फिर आजकल क्लाउड पे यूज करने लगे हो, तो आप S3 यूज करते होगे. S3 थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टोरेज है, लेकिन अगर आप NAS और SAN पे काम करते हैं तो इट ऑल वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल्स. सो फार सो गुड. आर यू ऑल विद मी? अच्छा, ये वाला जो मैंने बताया सर, ये एक सिंगल सर्वर पे भी बैठता था. अगर आपको मल्टीपल 3 नोड 4 नोड 5 नोड क्लस्टर बनाना है तो आप उस पे भी सिस्टम बना सकते थे. वी हैव वर्कड on clusters for which could scale up to 8 nodes or even 16 nodes, and I'm talking about probably 15 years ago when most of the applications were focused on one single server. उसके बाद उस जो पहले वाला जो मैंने आर्किटेक्चर बताया, इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस था कि आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो कैन यू somebody give me an example of an unstructured data? PDF documents, okay. Anything else? JSON streaming data probably. So जो डेटा आपके डेटाबेस में बैठेगा नहीं या टेबल में बैठेगा नहीं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो आपका ऑडियो फाइल्स हो गया, वीडियो फाइल्स हो गया, राइट, वो सारा डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड है. नाउ दैट काइंड ऑफ डेटा वाज, ये जो सिस्टम है, ये जो आर्किटेक्चर है, इसके लिए इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस आता है. तो इसके लिए वी हैव अ ऑब्जेक्ट स्टोर. आप लोग सब लोग अगर AWS यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट स्टोर यूज करते हैं, राइट. सो S3 इज अ प्रोटोकॉल व्हिच अलाउज यू टू एक्सेस योर फाइल्स व्हिच इज रिसाइडिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट स्टोर. तो इसमें बेनिफिट्स क्या है कि जो लिमिटेशंस फाइल सिस्टम के थे जो पहले, कि उसमें आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही फाइल का सेव कर सकते थे, जिसके कारण आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल स्टोर नहीं कर पा रहे. तो वो लिमिटेशन यहाँ ऑब्जेक्ट स्टोर में हट गया. आपका स्केल जो है बहुत बड़ा हो गया. यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर ऑफ इवन 20 क्लस्टर, 20 नोड, 50 नोड, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. जैसे आप AWS पे जो S3 पे डेटा स्टोर करते हो, द अंडरलाइन जो उसके पीछे का जो स्टोरेज होता होगा, इट माइट बी स्पैनिंग अप across 100 nodes also. जितना आप यूज करते जाएंगे, आपको सिर्फ उसको और बढ़ाना है, एक और नोड लगा दो, एक और नोड लगा दो. ये ट्रेडिशनल जो मैंने आर्किटेक्चर पहले बताया उसमें पॉसिबल नहीं था, राइट. सो एंड इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप डायरेक्टली, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन एप्लीकेशंस व्हिच एक्सेस डेटा डायरेक्टली फ्रॉम S3, राइट. तो आप लोग क्या करते हो, सिंपल REST APIs लिखते हो एंड यू कैन एक्सेस योर डेटा. पहले जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था उसमें आपको फाइल हैंडल्स यूज करना होता है, right? और उसके बाद आप डेटा एक्सेस कर पाओगे. तो now accessing data on S3 is far more simpler than the traditional storage system. So object store is one of the new age storage that we are talking about. Some of the commercial implementations, Cloudian अगर आपने सुना होगा,
या जो पब्लिक जितने भी हाइपर स्केलर से सारे लोग ऑब्जेक्ट स्टोर देते हैं. ओपन सोर्स में आपने सेफ अगर किसी ने सुना है या मिनायो किसी ने सुना है, तो these are the examples of open source object stores, which can be implemented on premise. So let us look at what has brought these changes in the data storage. मतलब सब कुछ घर सही सलामत चल रहा था, तो खुजली क्यों किया किसी ने, राइट? तो अगर देखेंगे तो इट ऑल बिगिंस फ्रॉम हार्डवेयर. तो द एडवांसमेंट स्टार्टेड हैपनिंग इन द हार्डवेयर साइड. तो पहले आप लोगों ने हार्ड डिस्क देखा, उसके पहले आपने फ्लॉपी डिस्क देखा. किसी को मालूम है फ्लॉपी डिस्क कैसा दिखता था? उसका क्या कैपेसिटी था? 1.2 MB था, 1.44 MB था. उसके बाद फिर सीडीज आया, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरा सफेद बाल देख करके आप समझ ही गए होंगे कौन से जमाने का हूँ. सो पहले ये था. उसके बाद हार्ड डिस्क आया. हार्ड डिस्क 512 1 GB का हार्ड डिस्क हुआ करता था, राइट? एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड डिस्क व्हिच आर अराउंड 30 TB ऑफ स्पेस, राइट? और उसमें हार्ड डिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरपीएम्स, राइट? तो पहले हम लोग 5000 आरपीएम्स की बात करते थे, आज हम लोग 15 के आरपीएम्स की बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो हार्ड डिस्क का साइज उतना ही है, लेकिन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ पर्टिकुलर हार्ड डिस्क कैन स्टोर has increased. So basically data per inch तो बहुत बड़ा है. So that is a major advancement. उसके बाद proliferation of SSDs and NVMEs. 10 साल पहले SSD मतलब किसी ने लगाया मतलब बैंक बैलेंस अच्छा है, राइट? टुडे आज आप देखो तो हर लैपटॉप पे आपको SSD मिल रहा है, NVMEs मिल रहा है. इसके बाद लैंड कार्ड जो थे पहले 100 Mbps का स्पीड मिलता था, आज हम लोग 25 gigs और 100 gigs के लैंड कार्ड्स की बात कर रहे हैं. GPUs, everybody knows NVIDIA is the most valuable company, and the IoT devices now. पहले तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स डेटा जनरेट कर रहे थे, अब मशीन भी आपका डेटा जनरेट कर रहा है, राइट? So these are the major factors from the hardware point which are contributing to the growth of data. Software side में अगर हम देखेंगे तो आपका big data और MapReduce, how many of you know big data, Hadoop, MapReduce, right? ये सब क्या है? These are all the software layers which allow you to process large and colossal amount of data जो पहले possible ही नहीं था. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो अभी हमने देखा, फ्यूजेस, यूजर स्पेस फाइल सिस्टम्स, एब्स्ट्रैक्शंस इतना हुआ है. पहले हम डायरेक्टली से हार्ड डिस्क से बात करते थे, आज हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज की बात करते हैं. सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज इज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थ्रू व्हिच आप सारे हार्डवेयर को आप सॉफ्टवेयर लेयर से मैनेज कर सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ फीचर्स दैट आर अवेलेबल, क्लाउड एक तरह से मैं बोलूं तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज देता है, राइट? और वो तभी पॉसिबल हुआ बिकॉज द सॉफ्टवेयर हैज डेवलप्ड एंड इट हैज बिकम मैच्योर दैट मच दैट यू कैन प्ले अराउंड विद द वर्चुअलाइजेशन ऑफ स्टोरेज. आर यू गाइस फॉलोइंग मी व्हाट आई एम सेइंग, और इट इज गेटिंग टू मच? नो, राइट? सो एब्स्ट्रैक्शन आया, देन कंटेनर्स एंड कुबरनेटिस हैव क्रिएटेड न्यू यूज केसेस. So these are some of the hardware and the software advancements in last 2 decades which has given new paradigms to data storage. So let us look at some of the new use cases, the latest new age use cases of data storage. We have already seen the application, how modern applications have revolutionized, or they have taken a different route altogether. Multiple microservices. I know some customers who are running around 50 to 60 microservices in one single application. अब इमेजिन करो आपका जो क्रिकेट का जो आजकल क्रिक इन्फो वगैरह में लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या नेटफ्लिक्स है, how many microservices they might be running so that they can live stream billions of connections, right? So applications have gone a major change, and then you have the fintechs of the world, the edtechs of the world. और इनको क्या चाहिए? इनको they need a bouquet of storage. जैसे मैंने बताया कि किसी को ऑब्जेक्ट स्टोरेज चाहिए, किसी को RDBMS चाहिए, किसी को persistent storage चाहिए, all sort of storage. Then big data, large scale, and these kind of workloads, they need very fast distributed systems. Data आएगा और they should be able to automatically scale up and scale down. At the same time, thousands of concurrent connections are needed so that large amount, जब हम लोग large amount की बात कर रहे हैं, TBs और petabytes of data की बात कर रहा हूँ, उतना डेटा प्रोसेस करने के लिए आपका कंकरेंसी भी होना चाहिए. कंकरेंट मतलब एक साथ how many people can connect or how many processes can connect to a storage system and process the data. AI ML, we'll talk about the use case of AI ML, how it is so critical, and it depends on the underlying data storage for the AI ML to be successful. And finally, media content
everybody is generating content, all of us are generating content. अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 4K और 8K का जो वीडियोस है हम लोग सब लोग देखते हैं, राइट, HD वीडियोस देखते हैं, और 4K रिकॉर्डिंग 1 घंटे का, तो उसका फाइल साइज होता है 15 GB का. Now let us say a content creation company है, let us say it's a film studio and they are creating or recording hundreds of that such videos every day. You can imagine कितना डेटा जनरेट करेंगे. अब वो सारा डेटा जो है उनको प्रोसेस करना है, उनका ऑफिस में स्टूडियो में वीडियो एडिटर्स बैठे हैं और उनको सारा डेटा प्रोसेस करना है. और जो प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर्स है उनका रिक्वायरमेंट है, दे नीड वेरी हाई थ्रूपुट ऑफ डेटा, नहीं तो वीडियो हैंग हो जाता है, प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे. तो उनके अपने प्रेमाइसेस में दे नीड टीबीज ऑफ स्टोरेज ऑल टुगेदर. और प्लस एक बार प्रोसेसिंग हो गया तो अब उनका जो पूरा जो रिकॉर्डिंग है दैट इज द होल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट. तो उनको लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी करना है और पैसा भी नहीं खर्चा करना है. So that is one of the kind of problem statement that I'm talking about. ये problem statement पहले नहीं था. पहले तो आप सादे आपके टेप्स में या सीडीज में स्टोर कर रहे हैं. So और सब आप पूरी दुनिया बात कर रही है कि मैं भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ. तो ये एक टिपिकल लाइफ साइकिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. जब आप एक LLM मॉडल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं आप दुनिया भर का जो आपका पूरा जो डेटा है, जहाँ से आपको बैक बोरो स्टील आपको मौका मिलता है डेटा को लेकर आना. अब इतना डेटा को एक साथ लेकर आना, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, पाइपलाइन बनाते हो. You might have hundreds of sources of your data. You want to gather all that data, right, and put it into a specific location. और उसके बाद आप उसको प्रोसेस करना होगा, आप उसको क्लीन करना चाहोगे, आप उसको नॉर्मलाइज करना चाहोगे, आप उसको न्यूट्रलाइज करना चाहोगे, whatever basically you want to do in the pre-processing of the data. तो पहले आप डेटा इंजेक्शन करोगे, उसको प्रोसेस करोगे. ये वर्कलोड के लिए आपको अलग तरह का डेटा स्टोरेज चाहिए, जिसमें उसमें आपका कंकरेंसी होना चाहिए, पैरेललिज्म होना चाहिए, राइट, फास्ट भी होना चाहिए. उसके बाद फिर आप फेज 2 में, अब यहाँ पर जब हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो आपका डेटा जो पहले पीटाबाइट स्केल में था आप उसको रिड्यूस करते हो टेराबाइट्स में. अब इस टेराबाइट ये आपका क्लीन ये डेटा रेडी है आपका एआई के लिए, जिसमें आप मॉडल बना सकते हो. तो आपने वेरिएबल्स, आपने यू माइट हैव ट्रिलियंस ऑफ वेरिएबल्स ऑन व्हिच यू वांट टू क्रिएट द मॉडल. So now you want to train that model using this TB of data. वो ट्रेनिंग करने के लिए now you have a GPU. यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है आपका. Your first problem is that जब आपका मॉडलिंग शुरू होता है तो आपका GPU साइकिल्स वेस्ट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज अगर आप GPU साइकिल वेस्ट करवा रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को ले ऑफ के लिए रेडी कर रहे हो, राइट. सो दैट इज द नंबर 1 प्रॉब्लम. अगर आपने GPU आपने जितना बिजी रखा आपको प्रमोशन मिलेगा और अप्रेजल भी मिलेगा. दूसरा, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें चेक पॉइंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मॉडलिंग. हाउ मेनी ऑफ यू नो चेक पॉइंटिंग? हाँ, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेजेस होता है. आपने ट्रेन किया, एक स्टेज हुआ, अब आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हो ये स्टेज को, तो उसको चेक पॉइंट करके रख लोगे. फिर आपने एक नेक्स्ट लेवल पे और आ गए, उसको भी स्टेज को प्रिजर्व करना है, तो उसको फिर आपने एक चेक पॉइंट कर लिया. नहीं तो क्या होगा, अगर चेक पॉइंटिंग नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा एंड देन फिर आपका ले ऑफ हो जाएगा, राइट. तो यू वांट टू प्रिवेंट दैट. सो दैट इज द रीजन चेक पॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चेक पॉइंट जो है बहुत ही आईओ इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, और वहां पर आपको वेरी हाई स्पीड स्टोरेज चाहिए, लो लेटेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं. इट हैज टू बी concurrent, मतलब every aspect of storage it has to be the top class, then only you will be able to do check pointing, right. फिर थर्ड आपका मॉडल बन गया, यहाँ पर आप उसको आपको मार्केट में लेके जाना है. फिर डेटा जो भी प्रोडक्शन आएगा उसमें से आपको इन्फ्रेंस निकालना है, राइट, और उसमें प्रेडिक्शंस निकालना है और प्रेडिक्शंस को आपको स्टोर करना है. दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज. तो आप अगर ये पूरा जो एआई लाइफ साइकिल देखेंगे तो विद लिटिल और स्मॉल चेंजेस द प्रोफाइल ऑफ ए डेटा स्टोरेज चेंजेस. एट द सेम टाइम इट इज हाईली क्रिटिकल. अगर यहाँ पर किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फेस में अगर आपका डेटा स्टोरेज आपका साथ छोड़ गया, फिर ले ऑफ हो जाएगा, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज योर डेटा मॉडलिंग, दैट जो अंडरलाइन डेटा स्टोरेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल है. सो अगर मैं आपको बोलूं कि हम स्पीड की अगर हम बात करें, या मैट्रिक्स जो स्टोरेज मैट्रिक्स होता है या डेटा स्टोरेज का मैट्रिक्स होता है, किस तरह का होता है. So these are some of the metrics for high performance storage. Bandwidth अगर हम बात करें तो it's 50 GB to 1 terabyte per second.
नॉर्मली एक सर्वर पे आपने एक छोटा कोई वेब एप्लीकेशन आप लिखते हैं ना, तो उसमें आपको थ्रूपुट कितना मिलता है? 100 MBPS। लेकिन जब हम हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज इन द रेंज ऑफ 50 Gbps. सो यू कैन लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्टोरेज दैट इट इज टॉकिंग अबाउट. लेटेंसी मतलब क्या है आपको पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट लेटेंसी? डिले रिस्पॉन्स टाइम. सो जितना कम लेटेंसी होगा मतलब मेरा उतना स्टोरेज फास्ट है, राइट? तो आप लोग सब लोग के लैपटॉप में SSDs है, राइट? आप लोग का जो लेटेंसी मुश्किल से अराउंड सेकेंड्स में होगा, या प्रॉब्ली थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा किया होगा तो मिली सेकेंड में होगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो सेकेंड्स. दैट इज द काइंड ऑफ लेटेंसी दैट इज एक्सपेक्टेड इन अ हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सिस्टम्स. IOPS की अगर हम बात करें, हमारे लैपटॉप्स या जो नॉर्मल सर्वर्स होते हैं उसमें हम लोग को 1000 से लेकर के 50,000 तक का IOPS मिलता है. कोई अच्छा SSD थोड़ा सा लगाया तो 1 लाख तक का भी मिलता है. बट हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सिस्टम्स का IOPS स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट पर सेकेंड. यानी आपका स्टोरेज सिस्टम और एप्लीकेशन से जो डेटा आ रहा है 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ काउंट, कितना IOPS हो रहा है, राइट? वो 2 लाख से लेकर के इट गोज 1 मिलियन और टू इवन 2 मिलियन प्लस, राइट? people who are storage architects. तो जैसे मैंने बताया कि स्टोरेज वालों से सबकी मतलब चांदी मांग लो एक तरह से, ठीक है? बिकॉज आपका डेटा जो है वो स्टोर होना चाहिए, अच्छी तरह से स्टोर होना चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, क्रैश नहीं होना चाहिए, आपको जब चाहिए तब मिलना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, राइट? तो सारा चीज़ आपको स्टोरेज से चाहिए. और फिर भी हम लोग को कोई मीडिया वाला कवर नहीं करता. तो जैसे मैंने बताया कि सो इट इज इजियर टू फाइंड गॉड बट डिफिकल्ट टू फाइंड द स्टोरेज इंजीनियर, राइट? Because this is a very specialized, jokes apart, it's a very specialized skill set. Because this is what you have to deliver. You have to deliver the storage capacity, the performance, the total cost of ownership. क्योंकि मैनेजर तो सबसे पूछे ना खर्चा कितना है. So total cost of ownership. भी आजकल एनर्जी की भी सब लोग बात करने लगे, ग्लोबल वार्मिंग है. Then you have media life and bit error rate. तो ये सारा हमको डिलीवर करना है. तो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा, कौन सा सर्विसेज, कहाँ से डेटा आएगा, क्या लॉजिक है. लेकिन जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिसएडमिन या स्टोरेज इंजीनियर जो है वो डिज़ाइन करता है. सो दैट योर एप्लीकेशन स्पेसिफिकली इफ यू आर बिल्डिंग ऑन क्लाउड, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यूज़ केस बताता हूँ. मेरा कस्टमर था लास्ट ईयर, ही वाज क्लॉकिंग अराउंड 12 लाख रुपये महीने का उसका बिलिंग आ रहा था अज़्योर पे. माइनिंग अटैक हुआ, 3 करोड़ तक पहुँच गया. खैर ठीक है, वो तो डिस्प्यूट में डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी 23 से 25 लाख रुपये का बिल आ रहा है. अब इन्वेस्टर बोल रहा है कि 25 लाख का 6 लाख नहीं करेगा तो अगला राउंड का फंडिंग नहीं लूँगा. अब वो फटाफट छटपटा के करे क्या? प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि इनिशियली जब वो स्टार्टअप था तो डेवलपर को हायर कर लिया और उसने बढ़िया अपने एप्लीकेशन तो अच्छा बनाया, लेकिन उसने अंडरलाइन स्टोरेज पे ध्यान नहीं दिया. 2 minutes. Right? So this is what happens when you are designing your application without a storage engineer or a DevOps engineer. Right? So data storage is very important, whether it is your AI workloads or your simple application workloads. So storage architects, it designs, builds, manages storage systems by understanding the workload and the I/O patterns. It benchmarks your performance and observability and ensure your systems and applications are running optimally with great performance. And some of the storage engineers, if they code, they are developers, system programmers, or kernel engineers. And finally, this is about me. I have been working on Linux since 1998. I honed my storage skills at Veritas and Red Hat for more than 15 years. I love riding horses and kayaking in the beaches of Goa, 2 kilometers inside the sea. And I love reading about social sciences and history. And at Data Nears, which I established in 2019, we are a bunch of storage folks who love to build storage solutions, data infrastructure, on-premises or on cloud, hybrid or multi-cloud, for AI, HPCs, high performance computing, or generic storage needs. On cloud पे या on premises.
And our USP is that we build our storage using open source and commodity hardware, so that you get the best value for your investments when it comes to building and hosting your applications. This is the tech stack that we work on: Ceph, Minayo, Tunas, and yes, not to forget, we are Google Cloud partners. So you extensively we work on Google Cloud. And finally, thank you very much. These are my coordinates. Feel free to send me a LinkedIn request or buzz me or email me. Do we have time for questions? Just one question. Yeah. So like you told that like efficiency is more important in terms of storage. So like I am a software engineer. My primary concern is to reduce the time complexities at application level. So what are the good practices should be observed in order to reduce the time complexity as well as optimize the storage? So time complexity in what sense? From an application point of view or the And for underlying storage? application point of view, like I want to work in milliseconds for Yeah. a particular case. Yeah, so first is, of course, when you're designing the application, you have to design in a way that there are no application bottlenecks inside. So your logic is optimum, right? That is number one. And for the storage, you'll have to hire a storage engineer like me. Because it's a specialized, otherwise you learn storage, Okay. right? You'll have to spend some time to understand the IO stack that I showed you, right? So how the data bits will pass on from the application layer to your file system, to your volumes, and to eventually to the disks. And there's a ton of systems that are available there. You have to look at if there is a bottleneck underlying that, those layers also. Are there any Kubernetes config that you can specify specifically for storage? So you have this Kubernetes, you can store this volumes, right? So you can create volume for your YAMLs. So that I mean there were some limitations on Kubernetes, but now with the CSI driver, I think the expansion or the compatibility of Kubernetes with storage has increased. Can you read about? You can tweak something in at least from application point of view to make it No, fast. you just have to write an YAML to have your storage layer exposed to your application.